नमस्ते. Myself Dr. Narendra Kumar Garg, Professor, Department of Kai Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapit Women's University, Jaipur. Today we are discussing on genetic disease hemophilia. How can we assess the severity of hemophilia? In a normal person, factor 8 and 9 remain at 50% to 100%, and 5% to 50% factor 8 and 9 in blood is mild hemophilia, and 1% to 5% is moderate hemophilia. Less than 1% factor 8 and 9 is severe hemophilia. How can we diagnose the hemophilia? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बेबी बॉय के जन्म के बाद जो ऐसे फैमिली मेम्बर्स जिनके फैमिली में कहीं हीमोफीलिया किसी को हुआ हो या कोई कैरियर रहा हो, तो वो तुरंत अपने डॉक्टर को बोलते हैं कि अपने बच्चे का वो हीमोफीलिया के लिए टेस्ट कराते हैं. तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चा बेबी बॉय अगर कोई ऐसा साइन शो कर रहा है जिससे हीमोफीलिया का डाउट हो, तो उसके लिए कुछ सर्टेन ब्लड के टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे इसके ब्लड की क्लोटिंग कैपेसिटी का पता चलता है. यदि ब्लड का क्लोटिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में फिर क्लोटिंग फैक्टर टेस्ट कराने के लिए उनको एडवाइस किया जाता है, जिसको हम फैक्टर एसी टेस्ट बोलते हैं, जिससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और उसकी हीमोफीलिया की टाइप्स और सीवियरिटी का हमें अनुमान लगाया जा सकता है. टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट आर CBC, APTT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और फाइब्रिनोजेन टेस्ट. इनके द्वारा हम हीमोफीलिया की सीवियरिटी और उसकी टाइप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. CBC कंप्लीट ब्लड काउंट. वैसे तो नॉर्मली हीमोफीलिया के पेशेंट में CBC काउंट नॉर्मल पाई जाती है, किंतु कभी हैवी ब्लीडिंग लंबे समय तक होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में RBCs और हीमोग्लोबिन का लेवल लो पाया जा सकता है. दूसरा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट, APTT टेस्ट जिसको बोलते हैं. इस टेस्ट के माध्यम से हम फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 12 की जांच करते हैं. यदि ब्लड का क्लोटिंग टाइम मोर देन नॉर्मल हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम डिसाइड करते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये क्लोटिंग करने के लिए ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं. तो इससे ये टेस्ट ये शो करता है कि हीमोफीलिया A और B का ये पेशेंट पॉजिटिव है. प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट. इस टेस्ट के अंदर हम ब्लड की क्लोटिंग एबिलिटी की जानने के लिए फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 5, फैक्टर 7 एंड फैक्टर 10 का टेस्ट करते हैं. यदि इन फैक्टर्स में से कोई लो पाया जाता है, तो ये ब्लड को क्लॉट करने में रुकावट पैदा करेगा. आमतौर पर ये इस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो हीमोफीलिया A और B के पेशेंट्स में नॉर्मल पाया जाता है. अगला टेस्ट, फाइब्रिनोजेन टेस्ट. फाइब्रिनोजेन is another name for clotting factor 1, which is discussed in prothrombin time. Clotting factor test. This is the main and important test for hemophilia A and B. Clotting factor test, also called factor assay, are required to diagnose a better bleeding disorder. This blood test shows the type of hemophilia and the severity. It is important to know the type and severity in order to create the best treatment plan.
Sign and symptoms of hemophilia. Number 1, bleeding into the joints. This can cause swelling and pain or tightness in the joints. It often affects the knee, elbows and ankles. You can see the images of hemarthrosis. And next is hematoma, bleeding into the skin or muscle and soft tissue, causing a buildup of blood in the area. You can see this image above this narration. Bleeding of the mouth and gums, that is hard to stop after losing a tooth. Bleeding after circumcision. Surgery performed on the male babies to remove the foreskin. Bleeding after having shots such as vaccination. Bleeding in the head of infant after a difficult delivery. Blood in the urine or stool, frequent and hard to stop nosebleed. These are the some clinical signs and symptoms of hemophilia. Who is affected? Hemophilia occurs in about 1 of every 5,000 male births. Currently, about 20,000 males in the United States are living with the disorders. Hemophilia is about 4 times as common as hemophilia B, and about half of those affected have the severe form. Hemophilia affects people from all racial and ethnic groups. Treatment plan of hemophilia. ऐसे हीमोफीलिया पेशेंट ए और बी के लिए हम उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स को उसके ब्लड में इन्फ्यूज़न करने से, जो कि बाज़ार में रेडीमेड पाया जाता है और रोगी को वो दिए जा सकते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को भी ऐसे ट्रेन किया जा सकता है वो सेल्फ अपने आप को प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ कर सकें, जिससे कि फर्दर डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। और हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर्स की भी मदद लेके रोगी अपने आप को इसके डिसऑर्डर से होने वाले जो इश्यूज़ हैं उनको जान सकता है और हेल्थ एजुकेशन लेके अपने आप को हेल्दी रख सकता है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, जब रोगी को फैक्टर्स रिप्लेसमेंट किए जाते हैं तो उसके बॉडी में एक एंटीबॉडी पैदा होने लगती है धीरे धीरे। 15 से 20% पेशेंट ऐसे हीमोफीलिया के होते हैं जिनके अंदर ये एंटीबॉडी बनने लगती है, जिसको इनहिबिटर कहा जाता है। वो बॉडी में जाके और क्लॉटिंग फैक्टर्स का जो काम है उसको रोकने में काम करते हैं, जिससे ब्लीडिंग को रोकने का काम जो क्लॉटिंग फैक्टर दिया जा रहा है वो काम नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में रोगी के लिए जो उसकी कॉस्ट है ट्रीटमेंट की वो बहुत महंगी होने लग जाती है, और विभिन्न प्रकार के अदर एबनॉर्मलिटी प्रॉब्लम्स, हेल्थ डिसऑर्डर्स उसको रोगी को परेशान करते हैं, तो जिससे कि रोगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो अफेक्ट होती है। कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए नेशनल हीमोफीलिया फाउंडेशन के द्वारा कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिनको गुड लाइफ स्टाइल के लिए रोगी को फॉलो करना चाहिए। इसमें पहला है कि कम से कम साल में एक बार हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर पर जाके अपना चेकअप कराए। दूसरा, हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीनेशन कराए, और जब भी ब्लीडिंग हो उसको तुरंत रोकने के लिए समुचित प्रबंध करें, और बॉडी के वेट को मेंटेन रखने के लिए, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज और रेगुलर लाइफस्टाइल का पालन करें, और कोई भी ऐसी ब्लड से रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उनको तुरंत रोकने के लिए और रेगुलर चेकअप करें और उनका समय पर समुचित प्रबंध इलाज करें। टू अवॉइड एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड प्रोटेक्ट योर जॉइंट्स, क्या करना चाहिए जिससे कि हम अत्यधिक ब्लीडिंग से बचें और अपने जॉइंट्स सुरक्षित रहें? उसके लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करें, और जो पेन किलर्स जो मेडिसिन हैं एलोपैथिक उनको मिनिमाइज करें, उनको अवॉइड करें, और जो ब्लड
को पतला करने वाली ब्लड थिनर जितनी मेडिसिन हैं उनको अवॉइड करें, और डेंटल हाइजीन को मेंटेन रखें, और अपने बच्चे को, पेशेंट को किसी प्रकार की इंजरी और ट्रॉमा से बचाए रखने के लिए समुचित प्रबंध करें। आयुर्वेदिक चिकित्सा में रक्तपित्त की चिकित्सा का हम इसमें पालन कर सकते हैं, क्योंकि रक्त मात्रज भाव है और ये रक्तपित्त एक इसको कुलज विकार रक्तपित्त की तरह हम इसको मान के चलें और इसका रक्तपित्त का ट्रीटमेंट करें। तो उसके लिए जो औषधियाँ हैं जो अच्छा काम कर सकती हैं, जिसमें गिलोय सत्व, मुक्तापिष्टि, प्रवाल पिष्टि, भाषा स्वरस, इन सब का प्रयोग रोग की स्थिति और रोगी के अनुसार, और अन्य जो भी रक्तपित्त सामक औषधियाँ हैं उनका प्रयोग लंबे समय तक अगर रोगी को प्रयोग कराया जाए तो वो उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और रोगी में जो इनहिबिटर्स पैदा हो रहे हैं उनसे हम काफ़ी हद तक इसमें मदद रोगी को दे सकते हैं।